Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 172 to Section 180 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of Contempts of Lawful Authority of Public Servant. So there is a chapter, Contempts of Lawful Authority of Public Servant, in which we will discuss section 172 to section 180. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 172 टू सेक्शन 180 ऑफ इंडियन पिनल कोड. ये हम डिस्कस करने वाले हैं. इसमें जब कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर कोई समन्स इशू करता है या कोई नोटिस इशू करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को हाजिर रहने के लिए और वो पर्सन उसका डिसओबीडियंस करता है या वो हाजिर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स होगी, ये सब सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Contempts of the lawful authority of public servant, section 172 to section 180 we will discuss under this particular lecture. So section 172 deals with absconding to avoid service of summons or other proceeding. So whoever abscond in order to avoid being served with a summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summons, notice or order shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. Suppose if any public servant issues a summons against another person, suppose if the public servant issues a summons against me and if I am absconding to avoid the service of such a summons, then I will be punished under section 172 and the punishment will be imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. सेक्शन 172 ये कहता है कि जब कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुली उसको पावर है समन्स इशू करने का, वो समन्स इशू करता है और जिस पर्सन के अगेंस्ट में समन्स इशू हुआ वो अगर एब्सकॉन्डिंग है, वो अवॉइड करता है वो सर्विस ऑफ समन्स को, वो समन्स लेने से वो बचता है, उस सिचुएशन में वो पर्सन जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू हुआ उसको पनिशमेंट होगी और पनिशमेंट कितना होगी, 1 महीने तक की सजा और फाइन 500 रुपए तक का या दोनों. तो मेरे अगेंस्ट में अगर समन्स इशू होता है और मैं समन्स से बच रहा हूं, मैं सर्विस नहीं होने दे रहा हूं, समन्स को सर्व नहीं होने दे रहा हूं, उस सिचुएशन में मुझे पनिशमेंट हो सकती है सेक्शन 172 में. और इफ the summons or notice or order is to attend in person or by agent or to produce a document in a court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. If the court issue a summons and in that particular summons if there is a notice or summons or order is to attend in person or by agent or to produce a document in a court of justice. समन्स क्या है कि समन्स में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप खुद कोर्ट में हाजिर रहो या आपका एजेंट भी हाजिर हो सकता है या आपका एडवोकेट हाजिर हो सकता है या सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है कोर्ट में. अगर ऐसा समन्स है, इन पर्सन आने की जरूरत नहीं है, एजेंट भी आ सकता है या सिर्फ डॉक्यूमेंट आप किसी के हाथ से भी कोर्ट में भेज सकते हो, उस सिचुएशन में अगर वो समन्स को अवॉइड करते हो, ऐसे समन्स को अगर अवॉइड करता है पर्सन, तो उसको सजा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और वो सजा क्या होगी, 6 महीने तक की सजा और फाइन 1000 रुपए तक का या दोनों. दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 172. नाउ सेक्शन 173, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन thereof. So whoever in any manner intentionally prevents the serving of on himself or on any other person of any summons, notice or other proceeding from any public servant legally competent such public servant to issue such summons, notice or order, or intentionally prevents the lawful affixing to any place of any such summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed, or intentionally prevents the lawful making of any proclamation under
the authority of any public servant legally competent as such public servants to direct such proclamation to be made. Now section 173 deals with, so whenever whoever in any manner intentionally prevent the serving on himself or on any other person of any summons, notice or order through a public servant which is legally competent to issue such a summons, notice or order, or if he intentionally prevents the lawful affixing to any place of any summons, notice or order, or intentionally removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed. So in short we can say that section 173 deals with कि for example कि अगर कोई person किसी summons या notice या order को intentionally avoid कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट ने वो समन्स, नोटिस या ऑर्डर इशू किया है या कोई कोर्ट ने समन्स इशू किया है, उसको वो अवॉइड कर रहा है, कोई पर्सन इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है। दूसरा कि वो अगर फॉर एग्जांपल वो समन्स वो पर्टिकुलर पर्सन चिपकाना चाहता है उस पर्सन के घर पर, मेरे आगे इसमें समन्स है फॉर एग्जांपल, और मेरे घर पर वो जो समन्स लेकर आया है पर्सन बेलीफ वो चिपकाना चाहता है और मैं उसको चिपकाने नहीं दे रहा हूं, उसको रोक रहा हूं, उसको इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा हूं चिपकाने से, या अगर वो चिपका कर चला गया तो मैं उसको फाड़ कर निकाल रहा हूं, मैं उसको रिमूव कर रहा हूं, चिपकाए हुए समन्स को अगर मैं रिमूव करता हूं, या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐलान कर रहा है कि ये पर्सन कोर्ट में हाजिर रहना है, उसको मैं ऐलान करने से रोक रहा हूं, प्रोक्लेमेशन करने से उसको रोक रहा हूं, तो इन सब सिचुएशन में मैं लायबल रहूंगा सेक्शन 173 के पनिशमेंट के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। तो मैं समन्स सर्व नहीं होने दे रहा, चिपकाने भी नहीं दे रहा, मैं समन्स को चिपकाए हुए समन्स को मैं फाड़ कर फेंकता हूं, प्रोक्लेमेशन भी मैं इशू नहीं होने दे रहा हूं। इस सिचुएशन में मुझे सजा होगी 1 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन या दोनों। Then, or if the summons, notice, order or proclamation is to attain in person or by agent or to produce a document in a court of justice, और वो जो summons जो पर्सन के अगेंस्ट में सर्व किया जाना है या जो चिपकाया हुआ है या जिसको उसने फाड़ा है या जिससे रिलेटेड प्रोक्लेमेशन वो पब्लिश नहीं होने दे रहा है, अगर वो summons फॉर एग्जाम्पल ऐसा है या वो ऑर्डर ऐसा है या वो प्रोक्लेमेशन ऐसा है कि उसमें वो प्रोक्लेमेशन में या वो समन्स में ये कहा गया है कि तुम खुद या तुम्हारा एजेंट या आपको ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल समन्स तो ऐसा है कि तुम नहीं भी आए तो चलेगा, तुम्हारा एजेंट भी आ सकता है। अब यहां पर मामला सीरियस हो जाएगा। ऐसे समन्स को अगर मैं सर्व होने से अवॉइड करता हूं, उस सिचुएशन में सजा बढ़ जाएगी। और सजा क्या होगी, विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। तो मैं अगर खुद नहीं जाना चाहता था तो मैं मेरे एजेंट को भी भेज सकता था कोर्ट में वो सम्मन्स, तो ऐसे सम्मन्स को भी मैंने सर्व नहीं होने दिया। उस सिचुएशन में मुझे 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपये तक का फाइन या दोनों हो सकता है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 173 पे, हु इज लायबल टू फेस पनिशमेंट अंडर सेक्शन 173 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860? पर्सन प्रिवेंटिंग द लॉफुल अफिक्सिंग टू एनी प्लेस ऑफ एनी सच समन्स, नोटिस और ऑर्डर। Second, person removes any such summons, notice or order from any place to which it is lawfully affixed. And third one is person preventing serving on himself or on any other person of any summons. All of the above. So the correct answer is all of the above. तीनों सिचुएशन में अगर वो चिपकाने नहीं देता समन्स को तब भी, चिपकाए हुए समन्स को फाड़ता है तब भी, सर्विंग ऑफ समन्स को प्रिवेंट करता है खुद पे भी या किसी और पे भी, तो उस सिचुएशन में भी उसको सेक्शन 173 में पनिशमेंट के लिए वो लायबल रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 174, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम अ पब्लिक सर्वेंट। So whoever being legally bound to attend in person or by an agent at a certain place and time in obedience to a summons, notice, order or proclamation proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue the same, intentionally omit to attend at that place or time or departs from the place where he is bound to attend before the time at which it is lawful for him to depart, shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to one month
और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विथ बोथ। तो अब सेक्शन 174 क्या कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा पर्सन हुएवर बीइंग लीगली बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और बाय एन एजेंट एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम इन ओबीडियंस टू अ समन्स, कि कोई पर्सन समन्स तो सर्व हो गया उस पर, खुद पर या किसी और पर्सन पर, और समन्स के चलते उसको खुद को या उसके एजेंट को वहां पर हाजिर होना है, लेकिन वो हाजिर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पे समन्स सर्व हो गया, मैंने समन्स ले लिया, लेकिन जो रिक्वायर्ड डेट है, जिस डेट में मुझे कोर्ट में प्रेजेंट होना है या पुलिस ऑफिसर के पास जाना है या कोई पब्लिक सर्वेंट के पास जाना है, तो उस टाइम पर अगर मैं प्रेजेंट नहीं रहता हूं या मैंने इंटेंशनली अवॉइड किया अटेंड करने का, या मैं वहां पर पहुंचा कोर्ट में लेकिन वक्त से पहले ही मैं वहां से चला गया, वक्त से पहले ही मैं वहां से चला गया, पहुंचा तो सही कोर्ट में लेकिन वक्त से पहले मैं वहां चला गया वहां से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे सजा हो सकती है 1 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों। सिचुएशन क्या है, सम्मन्स सर्व हो चुका है, सम्मन्स मैंने लिया और सम्मन्स लेने के बाद मैंने अटेंड नहीं किया, या अटेंड किया वक्त से पहले मैं वहां से निकल गया, दोनों सिचुएशन में मुझे सजा होगी। और इफ द सम्मन्स नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन इज टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। और ऐसा सम्मन्स जो मैंने रिसीव किया, सम्मन्स मैंने लिया, वो सम्मन्स में ये था कि मैं खुद या मेरा एजेंट भी कोर्ट में प्रेजेंट रह सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर ना मैं खुद रहा प्रेजेंट, ना मैंने एजेंट को भेजा, ना तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना था वो डॉक्यूमेंट मैंने प्रोड्यूस किया, उस सिचुएशन में क्या होगा कि मुझे सजा बढ़ जाएगी, 6 महीने तक की सजा हो सकती है मुझे, या 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। नाउ फॉर एग्जाम्पल, David being legally bound to appear before a district judge as a witness in obedience to a summons issued by that district judge intentionally omit to appear। यहां पर क्या हुआ, डेविड एज अ विटनेस वो केस में था और कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको समन्स इशू किया, और समन्स के चलते डेविड पे लीगली बाउंड है डेविड कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहे, लेकिन वो समन्स रिसीव करने के बाद भी डेविड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहा। यहाँ पर एज ए विटनेस उसको समन्स इशू हुआ, लेकिन वो रिक्वायर्ड डेट पे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। डेविड हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो डेविड ने सेक्शन 174 का ऑफेंस किया और डेविड को सजा हो सकती है सेक्शन 174 के प्रोविजन के हिसाब से। नाउ प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 174 पे, person disobeying summons, notice and order requiring to attend court or police station shall be liable for imprisonment, dash imprisonment 1 month, 2 months, 3 months, 6 months। तो हम देखें कि पनिशमेंट क्या है, 1 मंथ पनिशमेंट है। जनरल प्रोविजन 1 मंथ है। अगर एजेंट के थ्रू अगर प्रेजेंट रहने का कहा गया है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो 6 महीने तक की सजा होगी। नाउ सेक्शन 175, ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट to public servant by person legally bound to produce it। So whoever being legally bound to produce or deliver up any document to any public servant as such intentionally omits so to produce or deliver up the same shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। Suppose if I am bound to produce any document before the court of law and I received the summons but I fail to produce the document before the court of law, then I will be punished with an imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both। Suppose कोर्ट ने मुझे समन्स इशू किया और समन्स में ये कहा गया कि आपके पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो, और मेरे पे लीगली बाइंडिंग है कि मैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करूं, लेकिन मैंने समन्स तो रिसीव किया लेकिन वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में। उस सिचुएशन में मुझे 1 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों हो सकता है। और इफ द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोड्यूस्ड और डिलीवर्ड टू अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, समझ रहे हो कि पहला सिचुएशन जो 1 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन क्या है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर नोटिस देता है वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की और मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूं, उस सिचुएशन में मुझे 1 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का फाइन। लेकिन अगर कोर्ट मुझे समन्स इशू करता है और कोर्ट मुझे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कहता है और मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूं, उस सिचुएशन में मुझे सजा हो जाएगी 6 मंथ की, 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का फाइन और विथ बोथ। 2 चीजें यहां पर, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट
मुझे नोटिस देता है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की और मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता हूं तो मुझे 1 महीने तक की सजा, 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों। दूसरा सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोर्ट मुझे समन्स इशू करता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूं कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट, तो मुझे 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों हो सकता है। Example is there. John, being legally bound to produce a document before a district court, intentionally omit to produce the same. तो John legally bound है कि डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करने के लिए जॉन को समन्स इशू किया कोर्ट ने, लेकिन जॉन ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में, तो क्या होगा? जॉन हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो जॉन लायबल रहेगा सेक्शन 175 में पनिशमेंट के लिए। नाउ सेक्शन 176, omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it. So whoever being legally bound to give any notice or to furnish information on any subject to any public servant as such intentionally omit to give such notice or to furnish such information in the manner and at the time required by law. Suppose if I am legally bound to give any notice to any public servant and to furnish any information to any public servant regarding any fact, मैं अगर लीगली बाउंड हूं कि किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए या कोई नोटिस देने के लिए, और मैं अगर वो नोटिस नहीं देता हूं या मैं अगर वो नोटिस मैं इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करता हूं उस पर्सन को, उस सिचुएशन में क्या होगा? आई शैल बी पनिश्ड विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और विद बोथ। तो अगर मैं लीगली बाउंड हूं किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई इंफॉर्मेशन देने का या कोई नोटिस देने का और मैं वो इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं या मैं वो नोटिस नहीं देता हूं, उस सिचुएशन में मुझे सजा हो सकती है। सजा होगी 1 महीने तक की सजा या 500 रुपए तक का फाइन, या दोनों। और इफ द नोटिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन रेस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इन ऑर्डर टू the apprehension of an offender, if that particular notice or information required to be given respects to the commission of any offense or to required for the purpose of preventing the commission of an offense or in order to the apprehension of an offender। अब देखो कि अगर वो इंफॉर्मेशन या नोटिस इससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑफेंस हुआ और वो ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, या तो किसी ऑफेंस कोई ऑफेंस होने वाला है मुझे पता है और वो ऑफेंस को इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं तो ऑफेंस प्रिवेंट भी हो सकता है, ऑफेंस को रोका जा सकता है, फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या किसी पर्सन पता है मुझे कि ये पर्सन अब्सकॉन्डिंग है, ऑफेंस करके भागा हुआ है, तो उसको अरेस्ट करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो पर्सन फला जगह पर छुपा हुआ बैठा है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है और ये इंफॉर्मेशन अगर मैं पुलिस ऑफिसर को नहीं देता हूं या किसी ऑफिसर को नहीं देता हूं तो मुझे पनिशमेंट होगी विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। तो मुझे सजा होगी 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपए तक का फाइन, ये दोनों। कि मुझे पता है ऑफेंस हुआ, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मुझे पता है ऑफेंस होने वाला है, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, मुझे पता है कि जो पर्सन ने ऑफेंस किया हुआ कहीं पर छुपा बैठा है और मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, उस सिचुएशन में मुझे 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपए तक का फाइन, या दोनों। नाउ सेक्शन 176, सेक्शन 176 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इफ द नोटिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 565 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 565 ऑफ सीआरपीसी, तो सेक्शन 565 के सब क्लॉज 1 से रिलेटेड वो जो ऑर्डर है कि वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है कोई पर्सन, तो उसको 6 महीने तक की सजा, फाइन, 1000 रुपए तक का फाइन, ये दोनों हो सकता है। नाउ सेक्शन 177, फर्निशिंग false information। So whoever being legally bound to furnish information on any subject to any public servant as such furnishes as true information on the subject which he knows or has reason to believe to be false shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or both।
So the person who is legally bound to give and to furnish an information, if that particular person furnish an information to a public servant which he knows or has reason to believe to be a false, कि फॉर एग्जाम्पल मैं लीगली बाउंड हूं कि मैं कोई इंफॉर्मेशन दूं किसको, पब्लिक सर्वेंट को, और मुझे पता है कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन गलत है। ये पता होते हुए भी अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देता हूं, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बाउंड हूं, लेकिन मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पब्लिक सर्वेंट को, उस सिचुएशन में आई शैल बी पनिश्ड विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। तो मुझे 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकता है। और इफ द इंफॉर्मेशन विच ही इज लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इन ऑर्डर टू अप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंडर, और वो जो इंफॉर्मेशन है जो मुझे देना है पब्लिक सर्वेंट को, वो रिलेट करता है किसी ऑफेंस से, कोई ऑफेंस हो गया है उससे रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन देना है, या कोई ऑफेंस होने वाला है उससे रिलेटेड अगर मुझे इंफॉर्मेशन देना है, या कोई अक्यूज्ड पर्सन है कहीं पर छुपा हुआ है उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन देना है और मैं गलत इंफॉर्मेशन देता हूं। फॉर एग्जांपल ए ने ऑफेंस किया, मैं कह रहा हूं बी ने ऑफेंस किया, समझ रहे हो, ए ऑफेंस करने वाला है, मैं कह रहा हूं बी ऑफेंस करने वाला है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो छुपा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया में छुपा हुआ है, मैं दूसरा एरिया बता रहा हूं, उस सिचुएशन में भी मैं क्या कर रहा हूं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे सजा होगी विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो मुझे 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन या दोनों भी हो सकता है, समझ रहे हो, दैट इज द प्रोविजन। अब एग्जाम्पल इज देयर, जॉन अ लैंड होल्डर knowing of the commission of a murder within the limits of his state willfully misinformed the magistrate of the district that the death has occurred by accident in consequences of the bite of an snake। तो जॉन है जो लैंड होल्डर है, उसको पता है कि यहाँ पर उसके प्रीमाइसेस में उसके जो प्रॉपर्टी है उसमें मर्डर हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, मैजिस्ट्रेट को मिस इन्फॉर्म किया, उसको गलत इंफॉर्मेशन दिया और मैजिस्ट्रेट को यह कहा कि ये जो पर्सन है उसकी डेथ किसकी वजह से हुई है, सांप काटने की वजह से डेथ हुई है, हालांकि उसका मर्डर हुआ, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसने, सांप काटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। जॉन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो जॉन सेक्शन 177 की में सजा के लिए लायबल रहेगा, 2 साल तक की सजा हो सकती है, उसको फाइन इंपोज होगा या दोनों हो सकता है। Now section 178, refusing oath or affirmation when duly required by public servant to make it. So whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required, so to bind himself by a public servant legally competent to require he shall so bind himself shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. For example, एक आधा पब्लिक सर्वेंट है जो कोई इंफॉर्मेशन लेने का उसको पावर है ऑन ओथ, वो मतलब ओथ या अफर्मेशन, वो बोलेगा कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, कि ये जो है ओथ के लिए वो लायबल है। और फॉर एग्जांपल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पब्लिक सर्वेंट को और पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है ऑन ओथ, लेकिन मैं ओथ देने से मना कर रहा हूं, मैं कसम देने से मना कर रहा हूं, हालांकि मुझे कसम देना जरूरी है और वो पर्सन है उसको पावर है कसम दिलाने का और मैं मना कर रहा हूं, उस सिचुएशन में मुझे सजा हो सकती है और सजा होगी 6 महीने तक की पनिशमेंट या 1000 रुपए तक का फाइन या दोनों। नाउ सेक्शन 179, refusing to answer public servant authorized to question. So whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of a legal powers of such public servant shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई क्वेश्चन करने का उसको पावर है, पब्लिक सर्वेंट ने मुझे अगर कोई क्वेश्चन किया और मैं उसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं बाउंड हूं और मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल उसको आंसर देने से मना कर दिया मैंने उसको, तो उस सिचुएशन में क्या होगा,
आई शैल बी पनिश्ड विथ एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विथ बोथ। तो मुझे 6 महीने तक की सजा, 1000 रुपये तक का फाइन, ये दोनों हो सकते हैं। कोई पब्लिक सर्वेंट को पावर है इंफॉर्मेशन लेने का, उसने मुझसे क्वेश्चन किया और मुझे उसका आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, उस सिचुएशन में मुझे सजा होगी सेक्शन 179 के हिसाब से। नाउ सेक्शन 180, refusing to sign statement. So whoever refuses to sign any statement made by him when required to sign that statement by a public servant legally competent to require that he shall sign that statement shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both. तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन अगर रिफ्यूज करता है कोई पब्लिक सर्वेंट को कोई स्टेटमेंट पे साइन करने के लिए, किसी पब्लिक सर्वेंट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया किसी पर्सन का, अब पब्लिक सर्वेंट उसे कह रहा है कि इस पर साइन कीजिए और वो पर्सन साइन करने से मना करता है। फॉर एग्जांपल मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया किसी पब्लिक सर्वेंट ने और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पब्लिक सर्वेंट ने मुझसे कहा कि यू हैव टू साइन इट, आपको इस पर साइन करना पड़ेगा, और मैं साइन करने से अगर मना करता हूँ और लॉफुल है, वो पब्लिक सर्वेंट मेरी सिग्नेचर ले सकता है और मैं मना कर रहा हूं, तो मुझे सजा हो सकती है सेक्शन 180 में। और सजा कितनी? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक की सजा, 500 रुपये तक का फाइन, या दोनों हो सकता है। सो दीज आर द प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम सेक्शन 172 टू सेक्शन 180. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.